So, sir, first of all, welcome on NCC Journey platform from whole NCC Journey team and its supporters. And it's a great honor for us and all the cadets कि आप यहाँ पर मतलब गाइडेंस देने वाले हैं सभी cadets को. तो सर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं एक cadets के बिहाफ में पूछ रहा हूँ आपसे. एंड पेज पे डेली बहुत सारे cadets क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि सर जो एनसीसी का यूनिफॉर्म है उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स है उससे रिलेटेड जो डेकोरम है, लाइक बहुत सारे कैडेट्स उसका डेकोरम जो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? हम मतलब क्या चीजें कर सकते हैं, क्या कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं कैडेट्स के बीच में, और उनके एएनओस पे मतलब बिल्कुल रूट लेवल पे एएनओस क्या कर सकते हैं, एंड जो सीनियर अंडर ऑफिसर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली वेरी वैलिड क्वेश्चन। यू सी, क्या हो रहा है, तुमने भी जो एक वीडियो बनाया था, यस द सर. यूनिफॉर्म टुडे इज मोर सो हैज बिकम अ थिंग ऑफ चार्म रादर देन उसका एक्चुअल यूसेज क्या है। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया पर से व्हाट इज हैपनिंग दैट young teenagers and young adults of your age, a little lesser, because of the social media effect, anything which makes them shine than the others is very attractive. और इस चक्कर राइट में ये यूनिफॉर्म और तरह तरह के शाइनिंग चीजें, दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, वन वांट्स टू अडॉप्ट। ओके, राइट सर. नाउ यू हैव बीन अ एनसीसी कैडेट, तो तुम्हें पता होगा और तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा। Most of the colleges and schools may very limited number of cadets are there. यस For सर. example, कि अगर एक डिग्री कॉलेज है, whether government or private, where 2000 people are studying and there are only 50 cadets or 60 cadets, and उसमें से 2 या 3 अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर, तो क्या होता है, एक हीरो सिनोड्रोम बन जाता है अपने अंदर। यू स्टार्ट फीलिंग ओके. साइकोलॉजिकली दैट यू आर क्लास अबव द रेस्ट। यस सर. एक्चुअली इट इज. नाउ एक्चुअली इट इज, नाउ द इशू इज this class above the rest is a different connotation than what an appointment is made for leadership purpose. ओके. So thus, if you and me become appointments in a NCC platoon or company in a college or any junior division, whatever you are made, you start feeling that I have achieved glamour beyond the others. राइट. Now, this is not the purpose of the actual purpose of it. There may be a cadet who may not be an appointment, who may not be anything. He is just a simple cadet, but he is much more capable because personally यस सर. he might be a very good sportsman, achieving for the college. He may be very good in academics, achieving for the college. So if that guy has not become a SEO or something, does it become he doesn't have glamour? नाउ राइट. उसका ग्लैमर इसमें है कि उसका कॉलेज और उसका एनसीसी यूनिट उसको उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं करता। अगर मैं उसका इंस्टाग्राम में पिक्चर डाल के लिखूं कि ही इज विनर इन इंटर स्टेट वॉलीबॉल, he is a member of the national volleyball team, he is so यस सर. and so in engineering. Now अगर ये 3-4 मैं इस तरह के इंस्टाग्राम स्टोरी में उस नॉर्मल कैडेट का लिख के डालूं, तो उसका ग्लैमर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। डेफिनेटली सर. Definitely. But today what is happening, the definition of glamour is all being reduced to कि मेरे छाती पे कितने तरह के बिल्ले चमक रहे हैं, मेरे कंधे पे जरी की ये स्ट्राइप कितने तरह के मोटे हैं, पतले हैं, चमक रहे हैं, मैं मतलब राइट सर. कितने काले चश्मे लगा के कैसे हीरो बन के यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवा रहा हूँ।
Somebody is writing your voice is echoing. You may like to check. Okay. I don't know कैसे हो रहा है ये. I can also still hear a little bit of it maybe. Again, echo has come Now? back. Oh, what I have to do? Sorry for the कोई नहीं, पहले echo was interruption. pretty less when you were putting that ear on. Anyway. Right now, sir? हाँ, अभी ठीक है. I can't hear myself back that loud. It is very less. Okay. Okay, sir. Anyway, what I was coming to, तो ये uniform is a very sacrosanct thing. It is sacred in nature. It is so sacred for the service people that uniform is actually worshipped. And anything which is unauthorized in uniform makes you a very, very big fraud for that matter. Right. Anything that is laid in uniform is actually given by authority. Okay. And if you do not have the authority, you are as good as a Bollywood extra. Okay. Right. Or any of those darbans खड़े रहते restaurant या hotel के बाहर, you are as good as them. So, Like sir, band वाले. हाँ, जैसे बैंड वाले. Okay. कुछ भी पहन के निकल लेते हैं. हाँ. तो ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हो? So, if I see an unauthorized SEO or any cadet putting billa, I would rather go और 20 रुपए का नोट में ऐसे घुमा के उसके कान में डाल दो. न्योछावर करना है. न्योछावर करो. कि तुम्हें समझ में आ गया कि तू न्योछावर हो. Yes, sir. It doesn't make sense. So, in such a scenario, it is the failure of everybody. Yes, sir. So, I will not first blame the cadet, but I would blame their ANOs first. They do not educate themselves on the various rules and regulations. Large percentage of colleges and schools have CTOs, caretakers, and they take time to become ANOs. जब तक वो अपना कोर्स नहीं करते ग्वालियर या कामठी में, तो उनको भी Yes, sir. मिलता नहीं है सिखलाई. Fine. In such a scenario, there comes the responsibility of the unit commanders to teach these CTs, caretakers, and other who have not done the course yet in Gwalior or Kamptee. So it's a total. Sir, but there is also a problem कि जो एनसीसी में एएनओस हैं या फिर जो भी WTLs हैं, तो उनके कुछ सर स्पेसिफिक कोर्सेज ही होते हैं. जैसे रिफ्रेशर कोर्स, 2 रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं सर शायद. तो वो रिफ्रेशर दोनों कोर्सेज के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, 10 से 12 साल का. तो उस टाइम तक उनका जो नॉलेज लेवल है वो अपडेटेड नहीं होता सर. अब अगर मैं सर मेरे एएनओ की बात करूं तो वो अभी मेजर हैं, एंड उन्होंने जो अपना लास्ट रिफ्रेशर कोर्स किया था वो 2001 में या 2006 के आसपास कभी किया था सर. तो उस टाइम से उनका जो नॉलेज है वो उसी टाइम से है, एंड वो बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है. उनको एनसीसी के जितने भी रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब भूल चुके हैं सर. अब वो गलत बात है. गलत बात इसलिए है कि any change in the policies of NCC is being communicated to the ANOs from time to time as the COs get the policies from me, as I get from Yes, my sir. directorate and they get from DGNCC. To say Yes, that sir. the ANO doesn't know will not be correct in totality. Okay. Now, at the same time today, when we have moved on to WhatsApp and Telegram and all these things, so I see that my COs or my AOs, they are at least sending all the policy letters and the messages in the WhatsApp group. Right, sir. मैं मान सकता हूँ कि कुछ एक जो अंदरूनी इलाके में कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे कि डाक समय से ना पहुंच सके, कुछ गुम हो जाए पोस्टल डिपार्टमेंट की वजह से, ये संभव है. लेकिन in our digital life today, I think every ANO who is connected with the CO, he is getting on WhatsApp. Yes, sir. Okay. अब ये कितना इंटरेस्ट वो ANO लेता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है. Fine. But coming back to your basic question about the uniform.
So that is what I wish to tell all the cadets who are listening to you, that this uniform and this badges is not for glamour, and how it, I would say, help you, but rather in a negative may affect you if you try and put which is something not authorized to you. Today, Yes, sir. at 20, 21 years of age, when you are doing NCC or whatever and passing out after undergraduate course and then going for higher education or maybe for a service, if you put your NCC achievements in your CV, curriculum vitae or biodata, and project yourself कि सर मैंने ना ये किया है एनसीसी में, और अगर आप उसमें लिख के दे दे कि मैंने ट्रैकिंग कैंप किया, मैंने आरडीसी किया है, मैंने ये, और आप अपना फोटो भी लगा दे जिसमें कि आप ना बिल्कुल नाइजीरिया के जनरल लग रहे हैं, सारे तारे बिल्ले छाती पे लगा के, ओके। Yes, sir. और अफ्रीकन कंट्रीज में से दिखाते हैं ना कुछ, एक साउथ ईस्ट एशियन में कि इतने तारे बिल्ले लगा के घूमते हैं जैसे कि So पता especially नहीं, sir, North Korea. या नॉर्थ कोरिया एंड ऑल दैट। तो आपसे कोई उस कंपनी के एचआर में जहां पे कि लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड सर्विस पर्सनल है, आपसे अगर क्वेरी कर लेंगे ना तो आप वहीं ध्वस्त हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। डेफिनेटली सर, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आगे देखने को मिल सकता है। जी, तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितने छाती पे बिल्ले लगाए हैं ना, उसकी अथॉरिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कल कोई तुमसे पूछ ले कि भाई ये किसने लगाया तुमने, ये तो ऑथराइज ही नहीं है, पता है, तो तब आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे और आपका मुंह बंद रहेगा इंटरव्यू पैनल के सामने। बोलेंगे आप ऐसे ही पहन के घूम रहे हैं, तो आप हमारे कंपनी में नौकरी कहाँ करेंगे, इससे अच्छा तो बैंड ज्वाइन कर लीजिए। Great. So that is the connotation of this uniform, and people are not understanding कि ये ग्लैमर तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। वैसे भी अरुण, मतलब तुम और मैं एक फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डाल देना तो 48 घंटे में भूल जाते लोग देख के। Yes sir. अब देखिए ऐसे ही है ना, कोई लिख रहा है सर यू लुक स्मार्ट टुडे, इसको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे पता ही ये कौन है। हाँ, अभी इस इंटरव्यू के बाद आई एम श्योर शी विल कॉल मी, बट तो द इशू इज कि आर वी हियर टू लुक स्मार्ट और आर वी हियर टू बी स्मार्ट? सो दैट लुक और बी में डिफरेंस जो है, अगर किसी कैडेट को और किसी युवा को समझ में आए तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। और बताओ अरुण, व्हाट नेक्स्ट? सर सेकंड क्वेश्चन इज, आज के टाइम पे सर मैक्सिमम जो कैडेट्स हैं वो आर्म फोर्सेस से इंस्पायर होके जो भी चीजें आर्म फोर्सेस में होती हैं उनको अपने प्रैक्टिस में ले रहे हैं सर, तो वो चीज कैसे कंट्रोल की जा सकती है एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर? You see, before that, I would tell you कि it's time that we tightened the NCC. Today, like I had a delegation of class 10 student, करीब 20-22 लड़कियां और 5-7 लड़के आए हुए थे कहीं सीहोर के पास एक गांव से, और अपने साथ अपने पंचायत मेंबर के दो, मतलब दैट सेमी पॉलिटिशियन टाइप्स ना, they were accompanying these kids, and the poor girls and boys, young ones, they came to meet me. डायरेक्टरेट में भी गए थे, पहले शिक्षा मंत्री के पास गए, उन्होंने मेरे पास भेज दिया, उनको स्कूल में एनसीसी चाहिए। ओके। अब क्लास 10वीं के छात्र और छात्राओं को प्रोसीजर कहाँ पता, और ना ही उनके जो प्रधानाचार्य है वो ऐसा कुछ समझा सकते हैं। सो मुझे 1 घंटा लगा उन बच्चों से बात करके उनको समझाने में कि 10वीं में, आप भी 10वीं में जब रहे तो एक जुनून सवार होता है कि ये मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, लेकिन इतना आसान नहीं है मिलना। तो एनीवे द डिमांड इज ह्यूज and it is time that those who have it they utilize it properly, otherwise उनसे अगर छिन गया तो बाकी तो लेने को तैयार बैठे ही। एंड इफ यू सी एज वी आर डिस्कसिंग दिस, जो लोग यहाँ पे चैट कर रहे हैं ना, आधे इसी पे मरे जा रहे हैं कि गोल्डन स्ट्राइप कौन पहन सकता है।
दे आर आस्किंग यस यू। सर, मैक्सिमम कैडेट्स का क्वेश्चन यही है। मैक्सिमम कैडेट का यही है कि गोल्डन स्ट्राइप कौन कहाँ पहन सकता है। अरे यस सर, क्या फायदा गोल्डन स्ट्राइप पहनने का जब तुमको क्या कहते चलने की तमीज ना हो। ओके, डेफिनेटली सर। या यू डोंट नो ABCD ऑफ ड्रिल, और तुम्हारा ANO तुम्हारा क्या है, मामा चाचा लगता है, उसने तुमको बना दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ओके, सो coming back to your question about the inspiration. Now, the inspiration, how it is absorbed, differs from your upbringing. I'm making this statement. Why? Arun, if you have grown up in Gwalior, in a class B city of the country, I have grown up maybe in a village, not even in a city. यस, Okay. So, in such a upbringing, your perception is different. डेफिनेटली सर। And this perception leads you towards your formative years from teenager to adult, and thus your inspiration becomes in that manner. To qualify my statement, I would give an example that if you and others, तुम्हारे बैच के जितने थे पिछले साल RDC गए थे, you all may be trying to become officers in the defense forces. But the large percentage who are in the interior areas, they are all trying to become soldiers in the defense forces. यस सर, माइंड परसेप्शन। Mind perception. And thus, their, utilization of the NCC also differs. मैं कुछ दिनों पहले अपने जो मेरे एडमिन्स हैं मेरे चैनल के, वो घर पे आए हुए थे मेरे साथ यहाँ पे लंच पे, एंड मैं यही डिस्कस कर रहा था कि जो इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं और उसको डालते हैं, जो एक तरह के लोग हैं उसमें पता नहीं पंजाबी गाना और कैसे कैसे गाने डाल के उसको अपना जो है पोस्ट बनाते हैं। एक है जो कि अपना एक्टिविटी को दिखा के एक पोस्ट बनाता है, एक है जो कि ऐसी बारात में चल रहा है कि शादी किसकी ये नहीं पता। So all kinds of people are there, and in this, who is taking the inspiration out of it? Actually, I think very less percentage of people who are there on social media are actually those very less percent, they are more inspired. Okay, now Yes, sir. you have started your Telegram channel. Yes, Now, sir. ever since you have started it, people have joined, a lot of people. I am Yes, also sir. member of your Telegram group. Yes, sir. You I put know. your links and all. We don't know whether people are watching that or not. Yes, sir. But if you see, if you put a question over there, nobody replies. You see, if you analyze it, ये क्या है स्थिति? स्थिति ये है, आज की युवा को ना कुछ भी नया चीज दे दो तो तुरंत उछल के उस पर लटक जाते, ये नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना। Right, sir. Okay. Now, if I was of your age and following your channel and seeing your videos, then I might get into a healthy discussion in the channel and chat with you, even if I have to agree to disagree on some points. Right, sir. कि चर्चा तो हो कि मैंने आपका वीडियो देखा और उसके बाद ये मेरा मत है कि ये सही नहीं है या ये सही है, क्या इसको बदला जा सकता है, तो आप मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहे किसी भलाई के लिए अपने लिए। अदरवाइज Definitely. you are just watching it and moving on without any accruing any knowledge. तो फिर आप इंस्पायर कहां से होंगे? Right. So
just by watching Bollywood movies about army or air force, you can't become actually inspired. You might say in your interview कि मुझे ना कीड़ा तब जागा था जब मैंने जो है ये अक्षय कुमार की ये पिक्चर देखी थी. ये कहने में बहुत Yes, sir. आसान लगता है, लेकिन वो पिक्चर देख के अक्षय कुमार की तरह रोज सुबह 4 बजे उठते थे क्या? That's the point. That's the point. Okay. Chalo. What else should we discuss? A lot of Next people question are is, sir. getting, lot of people are writing to you. I can see. I mean, a hell of a lot of, Yes, sir. But sir, most of the questions are related to B certificate examination and C certificate examination. अच्छा, इन सबको बता दो जो सुन रहे हैं कि अभी सारे ATC और CATC सस्पेंड हो गए 30 days के लिए Okay. due to COVID third wave. So a review will be taken after mid-February. तब तक चुपचाप बैठे रहिए. Great. सभी ने सुन लिया सर आपको. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर काफी सारे जो पेजेस हैं वो काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं कैडेट्स के लिए, बट वहां से कैडेट्स उस कंटेंट से फायदा नहीं ले पा रहे हैं. एंड वहीं साइड बाय साइड बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो एंटी एनसीसी काम कर रहे हैं, वो एनसीसी को गलत दिखा रहे हैं. मेनली उन्होंने एनसीसी को कमर्शलाइज कर दिया है एंड वो खुद को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, एंड उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होता है. मतलब ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि कैडेट्स को एंटरटेनमेंट चाहिए. You are very correct. Sir, your observation is very correct. And this is what is harming us. So most of us who are in NCC and most of the cadets for that matter, they are looking for more visibility. कि लोग मुझे जाने. So actually we are becoming show-offs. So this culture of creating hashtags and tagging all kinds of pages is that culture. कि मुझे देखो. yes sir. कि कुछ लोग होते हैं ना, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, कितने लाइक्स मिले 25. So they are saying कि यार कैसे, मतलब ये लड़की इतनी अच्छी है और इसको लाइक्स मिल रहे सिर्फ 25, यार इसको और टैग करो. और लाइक आपको कोई देख भी ले तो आपको क्या हासिल हो रहा है जिंदगी. दिस इज अ साइकोलॉजी. दिस कम्स आउट, अरुण. There's a subject in psychology which defines different human beings. So these people who want more visibility in life, actually I believe they are very lonely. That's it, sir. It is more important than to have physical, people knowing you than virtual. The more today, Arun, I know you since maybe 1 year, little bit more, since you last came for RDC, pre-RDC and RDC. Now you are in touch with me. Yes sir. Because we met. Yes sir. But there have been other cadets who have met me online, but they are not in touch with me. How does a human relationship develop or a contact develop and your worth becomes more in visibility depends on that, your action. Until unless you become Shah Rukh Khan who has 400 movies under his belt, so you can get a following of 2 million. But you can't have one movie and suddenly become visible to everybody in the world. It becomes difficult. Yes, So sir. such is the case that we are today looking for वाहवाही, जिसे बोलते हैं कि मुझे और देखे और लोग देखें कि मैं ये कर रहा हूँ. Because it is leading to a culture where कि अगर आपको ज्यादा लोगों ने देख लिया तो कोई आ जाएगा कि यार तुम और दिखाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा. Right. And that greed comes in. अरे I am being appreciated. इसके बाद तो बोल रहा है कि हर रील पे 50 रुपए भी देगा.
And that is what is, is in the back of the mind of the person who is looking for visibility. कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे सुने. While it is not, I am saying कि wrong, but if somebody is trying to listen to you and see you for something worthwhile, then it is good. अब अगर मैंने तुमने आज तुम अगर बोलते कि सर दोनों हम लोग अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं और बीच में क्वेश्चन आंसर के बाद थोड़ा डांस करके दिखाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? या तो मैं बहुत बड़ा क्लासिकल डांसर हूँ या माधुरी दीक्षित हूँ तो ठीक है, ये तो मेरा और तुम्हारा डांस करने का क्या मतलब है जो साला आता ही नहीं है? निपुणता तो होनी चाहिए उस चीज पे. राइट सर. या सो फॉर फन people will say I'm doing this. तो जनरली इफ यू आस्क मी, आई वुड से इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर में कोई फन ही नहीं है, इसलिए तुमको जो है कैमरा लगा के फन दिखाना पड़ रहा है, सोशलाइज करना पड़ रहा है. या अदरवाइज you have nobody to have fun with you. I mean, where we have come. I would rather at this moment, I was about getting call 10 minutes back before we started from my friends, he said let's have fun. मैंने कहा where? उसके घर पे आ जाओ. We are 3. That is a kind of a different situation, isn't it? Where they are 4 यार मिल जा रहे to have fun. But to say we are having fun on Instagram क्योंकि मेरे पास 100 लोग जुड़े हुए हैं, it's a different perception. Because उन 100 लोगों को शायद आप जानते भी नहीं. And so that's the main reason कि आज के टाइम पे मैक्सिमम कैडेट्स रील्स एंड ये सब बना रहे हैं. Yeah. They want visibility. Yeah. तो उन 100 में से अरुण तेरे भी फॉलोअर्स होंगे, शायद 90% तेरे को जानते भी नहीं होंगे, कभी मिले भी नहीं. Okay. Right. So I am saying कि those who are following me without knowing me, there is a message he and she can take, but half of them are not bothered. That is why if you see, when we started there were 167 watching this, yes, and suddenly it has come to 123. Why? Because आधे तो जो है they are absolutely, वो क्या है, ट्रेन में अनरिजर्व्ड बोगी में चल रहे हैं कि किसी भी स्टेशन पे उतार दो. That is the reason. और बताओ सर. वन मोर इज लाइक आज के टाइम पे सर कैडेट्स जो हैं वो कैंप्स जो करते हैं, किसी भी कैंप के लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि पार्शियलिटी होती है कैंप के सिलेक्शन में, या फिर किसी भी चीज के लिए जो सिलेक्शन हो रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है. तो इसको सर कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो पार्शियलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है एनसीसी में, स्पेशली इतना बड़ा जो आर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है. तो सर हम क्या कह सकते हैं? मैं इस प्रश्न से काफी जूझता रहता हूँ. ओके. और जो इस चीज पे विश्वास रखते हैं उनके लिए फिर इस देश का प्रधानमंत्री भी पार्शियलिटी से चूज किया गया होगा. You never know. वो बोले कि प्रेसिडेंट भी पार्शियलिटी से चूज किया गया है. उनके लिए यूएन का प्रेसिडेंट भी वाला सेक्रेटरी जनरल भी पार्शियलिटी से होगा. उनके दिमाग में वो सोच ही ऐसी. Why? Because you are trying to justify self कि आप क्यों नहीं सिलेक्ट हुए. It's again human psychology. आप अपने कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को दोष दें. If you are good, you will become the javelin thrower. नीरज चोपड़ा. अब नीरज चोपड़ा बोला पार्शियलिटी हो गई, नहीं तो मैं तो कहीं और. There is no end to this. Okay. So people will talk till the end of this universe because it is human nature. It will never die down. There will be certain percentage, Arun, वो हमेशा बोलेंगे partiality. So last 2 years you guys have been seeing me. मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर भी लोग जो सिलेक्ट हो गया बोला सर बहुत अच्छे, जो सिलेक्ट नहीं हुआ बोला सर बिल्कुल बेकार है. तो ये तो चलेगा, इसका तो कोई अंत नहीं है. Sir, I was also eliminated in the second year of my RDC. Exactly.
Okay, so you were eliminated in the second year, but you still went thereafter. Yes, sir. Yes, sir. This time also, there are certain cadets whom I eliminated last year, and they have gone this year. Now, Yes, there sir. must be some reason to it. Now, this reason, people don't know. Actually, उनकी जो सोचने के दायरा होता है, वो बहुत सीमित होता है, और उनको पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज नहीं होता है, तो वो उस दायरे में सोचते हैं, तो उनके कंक्लूजन्स जो है ऐसे हो जाते सर लाइक कुएं का मेंढक. हैं. अभी that would be little more, slang, so I was not using it. That's why सर मैंने बोला. अनदर क्वेश्चन इज सर कि जैसे सर मैं आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड बहुत सारे कैडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सर एनसीसी स्पेशल एंट्री में 45 वैकेंसीज जो होती हैं कैडेट्स के लिए, 45+5 फॉर एसडीज, तो सर उसका सिलेक्शन रेट बहुत कम है. तो वो उसका सर क्या रीजन है? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सर रीजन बहुत सारे हैं, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ. Reason is simple, that the standards of NCC cadet is very, very, very poor. And this, I am telling you, having interacted with the SSB, chairman and the president of the boards and all, I have seen with my own eyes the NCC groups coming, getting washed out and going. नहीं तैयारी करके आते, नहीं तैयारी करके. And we do not have standardization of the NCC grading in the country. That is the second reason why this is happening. For example, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो अरुण, तुमने शायद सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेडिंग ले लिया होगा. ओके. यस सर. मध्य प्रदेश में सी सर्टिफिकेट ए ग्रेडिंग वाले शायद 30-35% होंगे आपके बैच के. यही आप उत्तर प्रदेश में चले जाए, वहां पे सिर्फ 12% है. यही आप महाराष्ट्र में चले जाए तो वहां पे 20% है. आप किसी और प्रदेश में चले जाए, वहां पे शायद 60% है. Okay. Now, if this is the skewed graph between the various states, तो जिस प्रदेश में 60% लोग अल्फा ग्रेडिंग ला रहे हैं और वो डायरेक्टली एसएसबी में आएंगे, तो आप समझ सकते हैं एसएसबी में उनका क्या होगा. Now, this standardization is something like not happening, unlike मतलब सीबीएसई का पेपर. सीबीएसई ने एक पेपर सेट करते हैं और पूरे देश में बांट देते हैं. Now, if we get to do that, then the standard will come up. Definitely, sir. Okay. दूसरा एक भी अनरिटन चीज है. देखिए, नीचे लेवल पे आपके जो एनोज है, पीआईज है या कुछ अफसर, मैं बताऊंगा कि शायद ये लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते और आपको उतना पढ़ाते नहीं है. ओके. जब आपको उन्होंने पढ़ाया नहीं और जब इम्तिहान में वो आ गया, तो आप तो बोलेंगे कि सर आपने कभी पढ़ाया नहीं हमें और इम्तिहान में दे दिया. तो वो फिर क्या करते हैं कि यार इसको किसी तरह पास करा. समझ गए ना. अब आपको पास तो करा दिया, आपको बी ग्रेडिंग दिलवा दी उसने, लेकिन हुआ क्या, एसएसबी तो में आप गए तो उन्होंने बोला बाहर निकल जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो. This is the problem why the NCC cadets are not doing well. सर बट इससे पहले काफी टाइम पहले इन माय नॉलेज जो एनसीसी कैडेट्स होते थे वो ग्रुप की तरफ से रिकमेंड होते थे पहले एसएसबी बोर्ड के लिए. देन सर वो ओपन कर दिया गया सर. Yeah. Now that was a correct procedure, but I wouldn't say कि those procedures are very subjective in nature. जहां पे आप ह्यूमंस को ले आएंगे ना, तो कोई ना कोई अरुण तुम्हें बोलेगा ये तो पार्शियल है, ये नहीं है. It is not. In today's world, it is better to have a system where the system is open to all.
and it is quantifiable Okay. with a singular standard. Now इन 3 स्टेटमेंट को समझने के लिए पॉलिसी मेकिंग में आपको बहुत जरूरी है समझना कि आप पूरे देश में ये चला रहे हैं, तो यू आर एज गुड एज सीबीएसई और आईसीएसई. बहुत जरूरी है कि आप सिंगल एग्जामिनेशन बोर्ड लाएं. आज भी अरुण, जब नीट का एग्जाम होता है तो पूरे देश का नीट का एग्जाम एक दिन 1 तारीख में होता है. ये सर. सारे आ जाते हैं, लाखों लोग नीट का एग्जाम देने, आईआईटी जेई देने, कुछ भी देने आ जाते हैं. ठीक है, तो एनसीसी भी शायद फ्यूचर में ऐसा करना पड़ेगा अगर स्टैंडर्डाइजेशन लाना है. अब आपने बोला पहले जमाने में ग्रुप से रिकमेंड होते थे. अब क्या पता अरुण, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं ग्रुप कमांडर, मैंने कर दिया रिकमेंड बिना किसी एग्जाम के, टेस्ट के. तो let us not keep subjectivity in mind. It is as good as to be, because that is why the youth of the country who is trying to go abroad, भाई उसको GMAT देना पड़ता है जो कि स्टैंडर्ड है. All this GRE GMAT, उसका लेवल ऐसा है कि तुम कुछ कर लो भाई, अपने ग्रुप कमांडर से रिश्वत ले लो, चाहे अपने प्रधानमंत्री से, उससे कुछ नहीं होगा. पास करोगे, नंबर लाओगे तो भी जा पाओगे. So something like that we need. And the day that happens, it will be for the benefit of the cadets. Yes, sir. And sir, one more question is related to NCC enrollment. बहुत सारी जगह पे एनसीसी एनरोलमेंट में काफी सारे जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छे क्रेडिट्स को लेते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बनाए रखने के लिए. बट बहुत जगह ओपन वैकेंसी होती है, एएनओ मेरा मामा लग रहा है, चाचा ताऊ लग रहा है, आ जाओ, या फिर रिश्तेदारी देख ली, सेम कास्ट के लोग देख लिए. या ये तो है. और ये एनसीसी में क्यों है, इस देश में कहीं पे भी है. सिर्फ एसएसबी और फौज की भर्ती में नहीं हो पाता ये. ओके, बाकी पूरे देश में ये खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देशवासी है ही ऐसे. हमारी जीन्स में आ गया, जब से ब्रिटिशर्स हमें दबा के रखते थे ना, तो वो एक जीन्स में आ गया कि कैसे मतलब भाईचारा, हम कैसे मतलब मैं कम काम करके निकाल लूं अपना काम. And this is in our medieval history also, right? When the Mughals came, you see everywhere लोग धोखा देते थे एक दूसरे को. Now this is part of life. So that is why those countries and economies which are more, doing better, they have made the system such that it is so open that कि तुमने एग्जाम दिया और तुमने सबमिट किया ऑनलाइन और तुरंत नंबर आ गए. अब ना तुम्हारे मामा ना चाचा उसको अमेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर तुरंत दिखा देता नंबर. ये सर ऐसा कुछ मतलब हम इसमें कर सकते हैं एनसीसी में कि एक प्रिलिमिनरी टेस्ट रख सकते हैं. करेक्ट. एनसीसी एनरोलमेंट से पहले. नाउ टू डू इट अक्रॉस द कंट्री इज नॉट इजी. इट इज समथिंग लाइक कंडक्टिंग अ नीट और अ जेई, है ना. मतलब इट्स अकिन टू दैट. अब उसमें और चैलेंज बढ़ जाता है व्हेन यू से कि भाई अरुण, आप पहले तो रिटन टेस्ट देने आइए, इसका पेपर आएगा दिल्ली से ऑनलाइन इतने बजे, या तो अपने घर पे ले लीजिए जैसे भी हो, उसके बाद यहाँ ये फिजिकल टेस्ट लेंगे. अब फिजिकल में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाएंगे पूरे देश भर में? इट्स नॉट इजी. तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाता है, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड. It can be minimized so that ये जो, let me tell you, I still get सिफारिश from various quarter की सर हमारे ये है, इसको भर्ती करवा ली. अब वहां से उनके एनो बोलते हैं कि सर इनसे तो 4 पुशअप नहीं लग रहा है. हाँ, मतलब 30 सेकंड तक अपने को टांग नहीं पा रहे, चिनअप तो दूर की बात है. बट दैट इज द थिंग. सो आई सेड कि ओके, फेंक दो, मत लो. जिससे सिफारिश किया उसको बता देंगे कि और घी खिलाओ, अगले साल भेजना. बट नॉट एवरीबडी डज इट. वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. बट इफ समबडी विशेस टू डू इट, वन कैन डू इट. बट इसको मिनिमाइज करने के लिए यू विल हैव टू
मेक इट मोर ऑब्जेक्ट। जिंदगी का मंत्र ही है, जितना ओपन और ऑब्जेक्टिव रखा जाए उतना बेटर। ओके सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे सर कैडेट्स जो क्या करते हैं कि कोई भी अगर कैंप करते हैं तो जैसा कि एनसीसी में बहुत ही लिमिटेड बैचेस ऑथराइज हैं अकॉर्डिंग टू रेड बुक एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो तो उनको पता नहीं होते हैं। बट वो जो भी कैंप करते हैं तो उनको लगता है कि इस कैंप का कोई बैच होगा, बट कैंप कमांडेंट बैच देते नहीं है तो वो खुद बनवा लेते हैं। अब इसी तरह के बहुत सारे कैंप्स हैं सर, आईएम अटैचमेंट हो गया सर, एंड बहुत सारे ट्रैकिंग कैंप्स हैं। उसके बाद में सर स्पेशली पीएम रैली, जिसका डीजी एनसीसी की तरफ से कोई बैच नहीं मिलता है, एंड हमको भी नहीं मिला था सर। एंड हमने भी वही गलती करी थी जो सीनियर्स को देखते आ रहे थे कि बैच बाहर से बनवा लिया, बैट कैंटीन से। भाई एनसीसी हो या आर्म फोर्सेस में, हर बैच इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। ओके, सो आर्म फोर्सेस में खास करके जो भी बिल्ले बिल्ले मैं लगा के घूम रहा हूँ, इट इज ऑथराइज्ड। somebody has awarded me with a letter, तभी पहन के घूम सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पहन सकता। इट इज इलीगल एंड tantamounts to charge under Army Act 63 for misconduct under good discipline. Now ये एनसीसी में जितने भी एनरोल होते हैं, तुम में से कोई एनसीसी एक्ट तो पढ़ता नहीं है, तो एनसीसी एक्ट का वो सेक्शन किसी को पता भी नहीं होगा अगर मैं किसी पे लगा दूं। सो इट इज रॉन्ग। एनी badge which is to be given or authorized to a cadet, it is mentioned or supposed to be mentioned in that camp ka adamant joining instruction that on the completion of this camp the cadets will be given so and so. That document becomes the authority, and thereafter if the camp is unable to present you that badge, you can still buy it. But उस लेटर में लिखा होना चाहिए कि इसके उपरांत आपको ये पहनना लागू है। अभी किसी ने लिखा व्हाट अबाउट मार्क्समैनशिप बैज, किसी ने अभी नीचे लिखा, आई जस्ट सॉ इट। तो मार्क्समैनशिप का डेफिनेशन ही शायद इनको ना पता हो कि मार्क्समैनशिप होती क्या है। किसी को अगर लगता है एनसीसी कैडेट को कि मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल उठा के 4 राउंड मार लिए और मैं मार्क्समैन बन गया, तो ऐसा नहीं है। देयर इज अ नेशनल स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कि मैं अरुण तोमर, मेरे को ग्वालियर ग्रुप से एमपीसीजी डायरेक्टरेट की तरफ से भेज दिया गया फायरिंग करने जबलपुर, तो मैं मार्क्समैन बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं जाने से ही आप बिल्ला लगाना, तो वो होता है जब, अगर पहले जमाने में क्या होता था हमारे टाइम पे, ये पॉलिटिकल पार्टी के रैली वैली होते थे ना, तो वहां पे आपके छाती पे ऐसी बिल्ला लगाते थे कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले या किसी समाजवादी पार्टी वाले, तो बड़ा अच्छा लगता था कि अरे ऐसे हाथ बना हुआ है, बिल्ला लगा ना पिन के साथ, वो लेपल पिन सर, लेपल पिन मतलब ऐसे गोल गोल, ठीक है, मेरे से बिल्ला लगा दिया। आप पहन के घूम रहे अपने गांव में ना, हीरो बने फिर रहे कि आज तो गुरु हम वहां से घूम के आए, हमें बिल्ला मिला है। अब उस बिल्ले की क्या अहमियत जो आपको मिला ही नहीं है, वो तो किसी ने बांट दिया सब फ्री में। तो हर एक बिल्ले की एक अहमियत है, उसके पीछे एक ऑथराइजेशन है और आपको पता होना चाहिए। अब जिसने भी लिखा और जो सज्जन मुझे सुन रहे कि मार्क्समैनशिप बैज, फर्स्टली मार्क्समैनशिप बैज आपको खुद नहीं पता कौन सा है। आप लोग एक पहन लेते हो जिसमें ना एक गोल्डन में ऐसे बंदूक लेके रेड बैकग्राउंड पे, या आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का बैज है, वहां पे जो इंस्ट्रक्टर पोस्ट होता है वो पहन सकता है। या फिर आप इंडियन आर्मी के और सर्विसेज टीम में मार्क्समैनशिप लेवल पे आए हैं तो उसके कुछ नंबर है फॉर कमिंग अप टू नेशनल स्टैंडर्ड, तो आपको वहां प्रदान किया जाता है और आपका पार्ट 2 ऑर्डर छापा जाता है कि इतने तारीख से आज से आपको ये पहनना लाजमी हुआ। ये नहीं कि आप गए या न्यू मार्केट में और दुकान से खरीद कर लगा दिया वेलक्रो के साथ।
कि आप मार्क्समैन बन गए, आपको बंदूक पकड़ाऊंगा तो 4 गोली सीधे नहीं जाएगी, मार्क्समैन बैच तो बहुत दूर की बात है। सो इट इज अ मिसनोमर दैट यू कैन वेयर एनी बैच, क्योंकि सीनियर ने बताया था। सीनियर भी उतना ही बेवकूफ है, तभी आपका सीनियर है और आप उसके जूनियर है। और पूरा राइट। कॉलेज ही उतना ही बेवकूफ है, क्योंकि ये कॉलेज का पूरा जो है चला। तो ये एक सज्जन अभी लिख रहे हैं, ये मेरे ही कैडेट है, इनको मैंने एक दिन समझाया फिर भी इनके चैन नहीं है। जय हिंद सर, SNIC कैंप करने के बाद बैच पहन सकते है, कुछ लिखा है ना। तो ये भाई साहब यस गए सर। थे SNIC, 4 लोग गए थे। सर दिल्ली। हाँ, दिल्ली। ओके। अब Arun, there are many things that people don't understand because they don't read that document. Okay, what is that SNIC for? अब उस SNIC में इनको कहीं लिखा नहीं है कि इनको बैज पहन सकते हैं आप। वो SNIC था, एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। हाँ, 75वें वो आजादी का यस सर। 75वां साल का, तो उसमें नया आजादी का अमृत गाना, महोत्सव सेलिब्रेट इट वॉज करते टोटली अ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ठीक, कल्चरल सॉन्ग, डांस एंड ऑल हैं। दैट। यस सर। There was no curriculum, there was no training, it was meant for that. Now, for the purpose of conducting certain camps, you have to name it because finances are involved. But इन सज्जन को लग रहा है कि हम तो 4 दिन दिल्ली हुआ है तो अब हम बैच पहन सकते हैं। अब इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके AGI में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन SNIC का मतलब है कि मैं छाती में लगा लूंगा। राइट। ओके, तो अब आज से 2 साल बाद जब ये कैडेट नहीं रहे और इनको कोई NCC का पुराना ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड मिल गया और बोलेगा, जब बच्चे आप ये छाती में पहन के घूम रहे, कौन सा कैंप किया, तो बोलेगा सर हम ना SNIC गए थे दिल्ली। कितने दिन रहे, वो 4 क्वेश्चन पूछेंगे, बोला क्या किया तुमने, क्या सर हमने ना MP का कल्चरल प्रोग्राम किया, बस और कुछ नहीं किया, और कोरस गाना गा के चले गए। क्या तुम्हारी ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं हुई करना, कि तुम्हें बिल्ला कैसे लगा के घूम रहे जो कुछ किया ही नहीं तुमने। तो आपको जो है ये लग रहा है कि मैं पहले अपने छाती को कैसे चमका लूं, बाकी मुझे कुछ आता हो ना हो। राइट। तो या तो SNIC का पूरा सिलेबस पढ़ लो, किस SNIC में क्या होना चाहिए, और किसी को फिर फेंक दो तो उसको लगे कि हाँ भाई बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको SNIC का पूरा करिकुलम पीरियड बाय पीरियड पता है। लेकिन बिल्ला पहनने की होड़ में ना आपकी नॉलेज रही 0, और जो है आप बिल्ले पहन के मोहल्ले में घूम रहे हैं। क्या किया एग्री जाए? सर। So this is the issue of these badges, that people don't understand that you cannot, I mean, who is stopping you? तो मैं बोलता हूं कि तुम SNIC और ये सब बैज क्यों पहन लो भैया, पुलिस वाले भी पहन लो, फायर फाइटर वाले पहन लो, ठीक है, और भी रेड क्रॉस वाले पहन लो। अरे सारी तो मार्केट में मिल रहे हैं, और कोई पूछे बोलो हम ना रेड क्रॉस के साथ एक दिन अटैचमेंट करने गए थे तो हमने पहन लिया, अगली बार रेड क्रॉस के एम्बुलेंस से लटक लेना। तो इसका कोई अंत थोड़ी है। अब एक ने लिखा है कि विच बैजेस आर ऑथराइज्ड, बहुत सही क्वेश्चन किसने भी पूछा। अब ये भाई साहब पूछ रहे विच बैजेस आर ऑथराइज्ड, लेकिन इसको जैसी मौका मिलेगा ये वेट नहीं करेगा पढ़ने के लिए, ये सीधे जाएगा और बैरागढ़ के दुकान से खरीद के लगा लेगा। तो तुम यहाँ पे लिख रहे हो विच बैजेस आर ऑथराइज्ड, अरे जाके अपने ANO से पूछो, रेड बुक पढ़ लो, चैप्टर नंबर पेज नंबर मैंने एक दिन शेयर किया था ना, ठीक है, इसमें तो अभी एक और आया, बोला हु कैन वियर गोल्डन रैंक्स। सारा कुछ इनको नॉलेज जो है इंस्टाग्राम पे चाहिए, किताब खोल के देखने के इनके पास मतलब मौका ही नहीं है, ये इतने बिजी लोग हैं। सर थाली में परोसा हुआ चाहिए एक्चुअली। हाँ, सब कुछ थाली में। मेरे पास आते हैं ना इंस्टाग्राम में, ये मेरे एडमिन कभी कभी हंसते हैं मेरे साथ कि सारा उनका जो नॉलेज ना बोलते कि मुझे यही PM पे दे दो, हम ना घर से निकलेंगे अपने बिस्तर से,
यहीं पे सब दे दो, बाकी हम यहीं पे खा लेंगे, यहीं पे हम डकाल लेंगे। तो ऐसे लोग कहाँ एनसीसी में कुछ कर पाएंगे या आगे भी कुछ नहीं कर सकते। और सर बताओ। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीसी यूनिफॉर्म। या सर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है मेरे साथ जो हुआ था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे कॉलेज के सीनियर थे, तो उन्होंने फायरिंग किया था मावलंकर शूटिंग के अंदर में, एक दो कैंप्स करे थे, तो उसका वो मार्क्समैनशिप बैच लगाते थे। एंड उन्होंने टीएससी भी कर रखा था, तो टीएससी का बैच लगाते थे। साथ ही साथ जब मैं सेकंड ईयर में आया तो उन्होंने आईएम अटैचमेंट कैंप किया। एंड आईएम अटैचमेंट के अंदर में एक ओवरऑल यूनिफॉर्म है जो कि आर्मी कॉम्बैट जैसा दिखता है सर, वो उन्होंने वहां से खरीदा एंड उसको पहन के हमारे कॉलेज में आ गए। एंड अब जब भी कोई भी इवेंट होता था तब वो अपने उस ओवरऑल यूनिफॉर्म को पहनते थे। एंड उस पे दो मार्क्समैनशिप के बैच, एक इधर एक इधर, एक पे इंडिया लिखा था एक पे विदाउट इंडिया, एंड बाकी सारे बैजेस। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है, क्योंकि सबसे अलग दिख रहा था वो, बाकी सारे कैडेट्स खाकी यूनिफॉर्म में आते थे, तो उन्होंने बोला कि ये यूनिफॉर्म मुझे आईएमए अटैचमेंट में दिया गया है। तो ये जो चीज है सर, ये एक्चुअली में हो रही है एनसीसी में, क्योंकि जो भी कैडेट्स बड़े बड़े कैंप करके आते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि वहां क्या हो रहा है। बाकी कैडेट्स को जो जूनियर लेवल पे हैं, ग्राउंड लेवल पे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, ना एएनओ को पता है। तो वो वहां से जो भी झूठ बोलते हैं वो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है। ये एक्चुअली ये जितने आईएमए शाईएमए जाते हैं ना, ये सबसे बड़े फ्रॉड बन के आते हैं। और तुम तो अभी भोपाल ग्रुप का एक गया हुआ हीरो, पहले ही दूसरे दिन वहां पहुंचते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम में उसने यही किया, ये बिल्ला खरीद के ना अपने ड्रेस में लगा के दिखाया। अब उसका वापस आने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वापस आएगा उसको ऐसा जूता पड़ेगा मेरी तरफ से कि वो एनसीसी से भागने के लिए तैयार हो। और मैंने ग्वालियर ग्रुप कमांडर को तभी बताया कि इन सबको ग्वालियर में आते ही ना समझा देना, अगर मैंने किसी के छाती पे आईएमए इंस्ट्रक्टर बैच देख लिया तो इसको एनसीसी से मैं दफा कर दूंगा। आप समझो कि वो बैच जो आईएमए में कप्तान से लेके कर्नल या लेफ्टिनेंट जनरल तक है, सिर्फ उसको ऑथराइज है पहनना। और जितने पीआई स्टाफ, मतलब हवलदार इंस्ट्रक्टर, जेसीओ इंस्ट्रक्टर, तुम्हारी क्या औकात कि तुम साले आईएमए में 10 दिन रह के उसको पहनना शुरू कर दो। उस बैच के पहनने पे एक पार्ट 2 ऑर्डर होता है, जिसके तहत 7th पे कमीशन के बाद उन इंस्ट्रक्टर्स को अलग इंस्ट्रक्टर अलाउंस मिलता है, तनख्वाह मिलता है। यस सर, एग्री। और जिस दिन आप आईएमए से पोस्ट आउट हो गए तो आपका पार्ट 2 ऑर्डर होता है और आपकी तनख्वाह घट जाती है और आप वो बिल्ला उसके बाद नहीं लगा सकते। ओके। ये सारे कैट एस्टैब्लिशमेंट हर एक के साथ है कि जब हम वहां पे पोस्टिंग जाते हैं तो ये दिखाने के लिए कि ये जो है टीचर है, वो डिस्टिंक्शन के लिए वो बिल्ला प्रदान किया जाता है। अब ये तुम्हारे उत्कर्ष जी पहन के आ गए और ये कोई भी उत्कर्ष पहन के आ जाए, ये मेरे सामने आए तो मैं इनको समझाऊं इनकी जिंदगी कि ये बैच कहां से। तो फाइनली ये ना, पहले उन्होंने बोला कि सर हमको तो वहां पे बोला ये, मैंने कहा तुमको किसी ने प्रदान किया क्या सर्टिफिकेट के साथ, कोई लेटर है? कुछ नहीं। तो फाइनली धरती पे आके बोला कि सारे पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने बोला उधर मिल रहा है खरीद ले, तुम भी खरीदोगे क्या? तो सारे पैसे इकट्ठे किए, खरीद लिया और छाती पे लगाया घूमने लगे। और अगर आईएमए की लंबाई और चौड़ाई इनसे पूछ लो कि बाउंड्री कहां से कहां तक है, तो एक सवाल का जवाब ना दे पाएंगे वापस आके, फोटो चाहे जितने खिंचवा ले। तो दे आर फ्रॉड्स इन मेकिंग. So I have raised complaints against this probable frauds to their principals with a copy to the education minister. तो या तो प्रिंसिपल अपना एनसीसी ठीक से चला ले, नहीं तो मैं एनसीसी उनसे वापस लेने को तैयार हूं, अगर डिसिप्लिन का नहीं रहेगा। अब जैसे रोहन पहले 150 रुपए का यस सर, ये है, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। तो the connotation of wearing a badge is it has to be authorized in that letter. It may be
presented along with the certificate in the campfire or the last day of the camp, or given as a thok under covering letter कि भाई ये आपके 40 लोग आए थे, ये इनका सर्टिफिकेट, ये इनका बैच. वो लेटर के साथ जब आएगा तो you are absolutely authorized to wear. There are certain standing orders where लेटर एक बार इशू हुआ है तो उसके बाद चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो लेटर दोबारा नहीं देते, जैसे आरडीसी वाले. सर उसका रेफरेंस दे देते हैं बस, फ्रॉम दैट लेटर उसका रेफरेंस दे देते हैं. तो आप पहन लो 7 स्टार बैच, आप आरडीसी हुआ है, आपने पीएम रैली किया, आपने पहन लिया. और रेड बुक में पेज 56 और जो मैंने आई फॉरगॉटन दैट डे somebody had put and I had also put, so it's given the precedence how to wear it. सारा कुछ दिखाया गया है, क्या चीज कहाँ पहनते हैं. CATC बैज, ATC बैज, all these badges, उसमें पढ़ो. ये नहीं कि आप छाती पे चारों तरफ इधर उधर दाएं बाएं कुछ भी लगा के घूमते रहो. उसमें लिखा हुआ है कि बाएं बाजू पे क्या लगाना है, दाहिने बाजू पे क्या लगाना है, सब कुछ लिखा हुआ है. लेकिन किसको टाइम है पढ़ने का? क्योंकि सबसे पहले तो आप बैच खरीदो, मिला है साले वहां सस्ता, ठीक है, पहले फोटो खिंचवाओ ताकि आज मैं फेसबुक पे डाल सकूं. ठीक है. तो दिस इज द कल्चर विच इज एक्चुअली मेकिंग यू अ फ्रॉड. वन डे योर फोटोग्राफ विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सोशल मीडिया, बिकॉज एक बार इंटरनेट पे आपकी फोटो चली गई ना, आप मर भी जाएंगे तो रहेगी. जब आप नौकरी के लिए जाएंगे ना, और अगर आपके एम बहुत हाई है, तो वो एचआर ऑर्गेनाइजेशन आपके फोटो इंटरनेट से कहीं से भी निकाल के आपको पूछ सकता है कि यार सुनो, ये क्या है, पैरा कमांडो वाले फ्लैग घुमा, ये सब बैज लगा के घूम रहे हो, कहाँ थे तुम? सर हम एनसीसी में थे. कहता तुमको किसने पैरा वाला ये बैच दे दिया? बोला सर हम ना अटैचमेंट करने गए थे. कहता अटैचमेंट में क्या किया? कहता नहीं 7 दिन 10 दिन वहां आगरा में थे, उन्होंने इधर उधर दौड़ाया भगाया और थोड़ा इंडोर प्रैक्टिस कराया और चले आए. बोला ये बैच तो उनको मिलता है जो मिनिमम 3 जंप्स करते हैं सक्सेसफुली. तुमने जंप किया क्या? तो वो बोले नहीं सर, हवाई जहाज में तो चढ़े ही नहीं. तो बोले साले मतलब दूर से देखा था. हाँ दूर से देखा था, तो ये लगा कि कहाँ घूम रहे. उस दिन बोलेगा तुमको नौकरी तो कभी नहीं दे सकते, तुम तो हम कंपनी को ले डूबोगे क्योंकि तुम फ्रॉड हो. तो सूरज सिंह जेठी कोई लिख रहे विच इज मेड बाय सीनियर्स. अगर सीनियर्स कुएं में कूद जाए तो तुम भी कूद जाओ, तुम्हारा पूरा कॉलेज ही कूद जाए, अरे खत्म हो बवाल. तो अपना दिमाग कहाँ है? सिर्फ सीनियर को ही फॉलो करते रहोगे तो अपना दिमाग कब लगेगा? मेरा मुद्दा ये है कि अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो, नहीं तो अपने आप को ये किसी ने सही लिखा, सम वेयर मरून बेरेज. बिल्कुल सही बात है, वो सबसे बड़े जोकर है. उनको मैरून बरे का पता ही नहीं है कि मैरून बरे कौन पहन सकता है. ओके, मैरून बरे पैरा में जो जाता है तुरंत वो भी नहीं पहन सकता जब तक एक क्वालिफाइड नंबर ऑफ जंप्स ना कर ले, फिर उसको प्रदान होता है मैरून बरे. यस सर. ये ले भाई, अब तेरे सक्सेसफुल इतने जंप्स हो गए, अब मैरून बरे पहन, अब तू पैरा ट्रूपर बन गया. अब बिल्कुल सही लिख रहा है कोई संचित शर्मा, सम वेयर बैजेस ऑफ ईबीएसबी ऑनलाइन कैंप्स आल्सो, या 40-40 रुपए के बनाए इन्होंने. और अगर मैं इनसे पूछूं तुमने एबीएसबी में क्या किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, तो 2-4 मिले थे मुंह बंद. उनको पता ही नहीं हुआ क्या 4 दिन एबीएसबी में, क्योंकि कंप्यूटर ऑन करके लैपटॉप ऐसे ही बैठ गए. सर बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, बहुत सारे न्यूज आते हैं सर. हमने देखे होंगे कि फेक आर्मी ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं सर, जो बहुत सारे फेक कैप्टन, फेक लेफ्टिनेंट. तो उस तरह से सर हम एनसीसी कैडेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, जो फेक बैजेस लगा के घूम रहे हैं. भाई यार अरुण, मैंने तो तुमको उस दिन बताया था, आई हैव स्टार्टेड इन माय भोपाल हेविली ऑन दिस फ्रॉड्स. एक तो शायद 3 रात से भगोड़ा होने वाला है, वो सो नहीं रहा है. उसका मैंने कुछ देखा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनके प्रिंसिपल को फोन लगा दिया है. तो अभी बोलता है सर सॉरी सॉरी. मैंने कहा सॉरी तो तब होगा जब पनिशमेंट मिल जाएगा, उसके बाद बिना पनिशमेंट के कोई सॉरी नहीं. सॉरी तो बहुत ही आसान स्पेलिंग है, कोई भी लिख ले, कोई भी बोल ले. सबसे इजी वर्ड है इंग्लिश का सॉरी. तो सर वन मोर क्वेश्चन. सर जैसे एनसीसी में 2 डिवीजन है, जूनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन.
तो बहुत सारे कैडेट्स जूनियर डिवीजन में आरडीसी या फिर टीएससी कर लेते हैं, तो वो अपने बैजेस को, अपने जो अचीवमेंट्स उनको सीनियर डिवीजन तक कैरी करते हैं, एंड सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि ये अचीवमेंट इन्होंने कब किया था। या तो ये सर गलत है या फिर सही है? नहीं, आई वुडंट से गलत है. Why? Because let us compare this scenario with something कि as a child prodigy you can still go at the age of 16 or 15 years to Olympics also. ठीक है? यस सर. Now समझ ले अरुण यार कि तू 15 साल में एक छोटा सा लड़का है या लड़की है जो जिम्नास्ट में you are reaching nationals and you are getting an some kind of a recognition. और by the Yes, time you are coming to 22, 24 and all that, वो recognition तो तुमको मिल गया है. So okay. it will be wrong to say कि मैं उसकी छाती से उतार लूं because वो तब क्लास 9 में थी. Okay. So it is a wrong comparison because an achievement is an achievement which should remain for life. Okay. Because तुम अगर 15 साल में तुमने अचीव किया और आज तुम्हारी उम्र अरुण हो रही है 22 साल, तुम लेकिन सीवी तुम्हारा सेम ही रहेगा, बायोडेटा में लिखोगे ना. हाँ, सो आई थिंक इट विल बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट टू जज देम कि शुड दे कैरी इट ऑन. आई थिंक दे शुड कैरी, बट आई वुड रादर से कि वो कैडेट जिसने जूनियर डिवीजन में आरडीसी किया है, उसके बाद वो सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग में आके फिर आरडीसी सिलेक्ट. ओके. क्या उसको मैं 2 बैच पहनाऊं या एक ही बैच पहना? अब बताओ क्या होगा. सर दोनों बैच पहन सकता है फिर. उस बैच में कहीं डिफरेंशिएशन है क्या लिखा हुआ, जेडी या एसडी? ना, नो सर, नहीं है ना. सो सिमिलर आई विल से द लॉजिक दैट पहले ये होता था इंडियन आर्मी, तुमने आर्मी ऑफिसर, तुम आर्मी विंग के हो तो आर्मी में देखा होगा कि हम अपने छाती पे कमेंडेशन कार्ड्स पहनते हैं. जैसे डीजी कमेंडेशन कार्ड होता है. सो लाइक आई हैव गॉट वाइस चीफ का, आई हैव गॉट चीफ का, आई हैव गॉट सेंट्रल आर्मी कमांडर का अपने टेन्योर में. मेरे पास 3 कमेंडेशन कार्ड. सो देयर वर पीपल हु वर गेटिंग कमेंडेशन कार्ड एवरी ईयर ऑलमोस्ट, और एवरी 2 years. वो थे अच्छे, उनकी किस्मत थी तो उनको मिल रहा था. So some of them had 5, 6, 7. तो क्या है कि पॉकेट जो है छोटा पड़ रहा था. yes, so then वो स्टार इंक्लूड किया गया सर. जी, yeah, you know it. So if you have got 2, तो you have 1 badge with 1 star. That means कि 2 है तुम्हारे पास. अगर 3 है तो 2 स्टार, अगर 5 है तो 4 स्टार. तो पॉकेट हल्का हो गया और सबको पता भी चल गया, और इतना जो है बैज को पॉलिश करने में, रंगाई में और खर्च नहीं होना है. तो वी कैन डू दैट कि भाई अगर जूनियर डिवीजन में भी उसने अटेंड किया और सीनियर डिवीजन में भी गया है, ही मस्ट बी गुड. तो उसको एक ऐसा स्टार दे दो जिसमें स्टार में स्टार, 7 स्टार बैच में एक और स्टार लगा दो, तो सारे लोगों को पता चल जाएगा ये 2 बार कर चुका है, मतलब अल्टीमेट आदमी है ना. और बताओ. But sir, some cadets are wearing like 5, 7-star badges or 6, 7-star badges. One is for basic. बेवकूफ है यार, इनको इन पे तरस खाओ. ठीक है, अगर बैज लगाने से ही सारा मतलब आपका मतलब पर्सनालिटी हो जाए तो फिर इनको नॉर्थ कोरिया भेज दो. बिकॉज देयर इज नो एंड टू putting things for glamour. It is not authorized. Okay. मतलब मैं SNIC कर लिया, मैंने TSC कर लिया, मैंने ATC कर लिया, तो मैं एक 7 स्टार बढ़ाता चला जाऊं. It doesn't make any sense. It is 1 7 star is good enough to show that you have done a national level camp. That's about it. बाकी इसीलिए तो इनको कहाँ नौकरी मिल सकता है. ये जो बारात के बैंड वाले होते हैं ये ले लेंगे. क्या भाई, क्या ये यूनिफॉर्म है तेरा, आजा आज भोपू बजा ले पीछे, कम से कम ये बैंड में तो खड़ा हो जाए. और ज्यादा बैजेस मिलेंगे पहनने को. और ज्यादा बैजेस मिलेंगे. वो साले बारात में वैसे ही नोट फेंकते रहते हैं, तो कोई आके बोलेगा कि ले यार 2 और बैज ले ले. सर एक सर एनसीसी में यूनिफॉर्म का वेरिएशन है सर.
बहुत ज्यादा। कुछ कैडेट सर हाफ स्लीव्स पहनते हैं, कुछ फुल स्लीव्स पहनते हैं। एंड बहुत सारे सर ऐसे मिथ बना रखे हैं कि अगर तुम सेकंड ईयर में हो तो ये बेल्ट नहीं लगा सकते, ये टोपी नहीं पहन सकते, ये पैंट नहीं पहन सकते, जो आरडीसी करके आएगा वही सिर्फ ऑफिसर्स बेल्ट पहनेगा। तो ये सर बहुत सारे मिथ हैं। ये सब मिथ जो है ना, किसी समय में किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया है। एंड दीज आर नॉट रिटन एनी, दीज आर अनरिटन। एंड वॉट एवर इज अनरिटन इन सर्विसेज, इट इज फेक। हाँ, ये सब जो है अपना, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो तुम बता रहे हो, दी I would say the lack of knowledge with the ANOs and the CTs. Okay, problem है with them. They don't want to get involved. Okay, at some level, I would say we are also to blame. That हम इनको मतलब शायद डंडे से नहीं सिखाते. We expect that they are much mature teachers of various kind, that they would imbibe the knowledge on their own, but करते नहीं. And that is the sad part. हाँ, अब जैसे कोई लिख रहा, ऑफिसर बेल्ट इज ऑथराइज्ड टू दोज हु अटेंड आरटीसी कैंप. अबे तू और कहाँ ऑफिसर, जा एसएसबी जरा क्लियर करके दिखा दे, तब तो ऑफिसर वर्ड यूज करना शुरू करना. Directly they are talking about the leather belt sir. बस. So the issue leather belt is, का नाम ऑफिसर बेल्ट रख दिया है. बस. Now the issue is यही कम knowledge and the understanding of the issue. अब यही आदमी जो लिख रहा है ना, आई डू नॉट नो कौन है ये जब सीनियर है क्या नहीं है पता नहीं मुझे, जब ये पास आउट हो जाएगा ना, अपने कॉलेज में रोब मारेगा, अबे अफसर वाला बेल्ट मैं पहनता था. तुम ये करा तुम भी पहन लो. एंड दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स. मे बी सर इट्स बाद में बोल सकते हैं ये उनके लिए अचीवमेंट था. हाँ, या वो बोल सकते थे अचीवमेंट था, तो ऐसे ही नाम दे देते और फिर घूमते रहे. अंत भला सब भला. तुम्हारा अंत क्या है ये सब बेल्ट वेल्ट पहनने के बाद? अगर अफसर बन गए तो ठीक है, नहीं तो ये 4 दिन की चांदनी कहाँ तक. ऐसे ही लोग उसके बाद जो तुम्हारे फोटो के नीचे हंसने वाला इमोटिकॉन डालेंगे कि भाई कल हमारे मोहल्ले में शादी है, आएगा क्या? तो थोड़ी देर यार ड्रम लेके खड़ा हो जा. Great. So that is what life is about. How, I mean, I would be scared today to even put a wrong badge on myself, which has not been given to me by the armed forces. How can I just buy one and wear? और बताओ. Yes. सर एक चीज और बहुत कॉमनली देखने को मिलती है सर कि बहुत सारे जो कैडेट्स हैं या फिर बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो आर्म फोर्सेस से इंस्पायर होकर चीजें प्रैक्टिस में ले रहे हैं. जैसे कि सर आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं जो सेरेमोनियल टोपी पहनते हैं सर, और परेड्स वो अलग सा जो टोपी होता है, जैसे राजपूताना राइफल्स ब्लैक कलर का जो टोपी पहनते हैं. एंड सर एक शॉर्ट ड्रिल होता है जैसा आर्मी में, तो वो चीजें सर एनसीसी में कॉलेजेस में प्रैक्टिस में ले रहे हैं एंड उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड उसको देख के दूसरे कॉलेजेस भी जहाँ पे वो चीज प्रैक्टिस में नहीं है वो भी फिर प्रैक्टिस में ले रहे हैं. तो ये एकदम सर ऐसे कॉन्टेजियस डिजीज की तरह फैलता जा रहा है. You are very correct, यार. I wish to write to DG NCC myself on this. Especially ये आर्म फोर्सेस के ये जो यूनिफॉर्म कोई यूज करता है, मेरे पास तो अगर कोई मिल गया मैं तो FIR लॉन्च करूँ. ओके, because I am very keen to at least set an example against somebody by lodging an FIR against that guy or a girl. I don't mind even if it's a girl. I will write to the National Women's Commission कि आप ऐसा नहीं कर सकते, because there is a IPC का धारा है, CRPC का धारा है कि even you cannot buy आर्म फोर्सेस का यूनिफॉर्म का क्लॉथ एंड एनीबडी सेलिंग इज इलीगल. बट इस देश में इस कानून का इसका इम्प्लीमेंटेशन हैज नॉट बीन करेक्ट. ओके, सो इन सच अ केस लाइक अदर डे वी वर सीइंग दैट सम गर्ल ऑफ एनसीसी वेयरिंग द व्हाइट मेस शर्ट एंड द ब्लैक ट्राउजर विद दैट कमर बंद ऑफ समथिंग. कमर पट्टा सर. हाँ, कमर बंद हम बोलते हैं. अरे कैडेट पहन ही नहीं सकता. Even if she is the wife of an officer, she cannot wear it until unless हाँ कोई डांस ड्रामा कर रहे हो यार, कोई नौटंकी कर रहे हो तो उसका फोटो है तो फिर ठीक है.
दैट आई वोंट बी जजमेंटल टू इट, नीदर यू। हाँ, लेकिन अगर वो फोटो किसी नौटंकी के लिए पहना है फिर तो ठीक है, क्योंकि उस ड्रेस में उसने ऊपर अंडर ऑफिसर या सीनियर अंडर ऑफिसर वाले टैब लगा रखे। हाँ यस सर, एसईओ सर। हाँ, दैट्स द एसईओ का। पिक्चर फ्रॉम दिल्ली डायरेक्टरेट सर। हाँ बताइए, दिल्ली डायरेक्टरेट। तो मैंने तो खैर पूछा नहीं, मैंने कहा कि पता नहीं किस सन का फोटो है ये वो, अगर नाटक वाटक कर रहे हैं तो ठीक है यार। हाँ, बट इफ दे आर ट्राइंग टू रियली यूज इट, they can be taken to task. If I get my hands on, so I will file an FIR against them. It is wrong. It is totally wrong. So coming to the बेसिकली drill, सर, to your drill coming, यस सर। you know, as far as NCC is concerned, drill का chapter है, यस सर। ठीक है, ट्रेनिंग का। there is a practical drill जो सिखाना है, उसका भी laid down है सब। यस सर। Anything beyond that is not part of the curriculum. So thus anything you evolve or do is rather for fun. It is not as authorized, and it will be wrong to propagate it, because as per the service culture it is not correct. So अब किसी ने बार बार, सबको यही होता है कि देखो ये किसने लेगा सर, कैन यू एग्जाम्पल अस अबाउट द रैंक लाइक जेयू और एसयू बिटवीन गोल्डन स्ट्रिप्स एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। ये घूम फिर के इनकी जिंदगी खत्म हो रही है ब्लैक स्ट्रिप पे और गोल्डन स्ट्रिप पे। यार राइट सर। मेरे भाई, तुम जो भी हो, मेरी बात सुनो, तुम चाहे ब्लैक लगा लो या गोल्डन लगा लो, लेकिन तुम्हारी औकात ना जीओ की और एसईओ की तभी पता लगेगी तुम कितने अच्छे या बेकार हो। मेरी तरफ से तुम पर्पल लगा लो, पिंक लगा लो, रेड लगा लो, कोई फर्क एंड नहीं इवन पड़ता। सर, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्डन रैंक्स इन रेड बुक। सिर्फ रैंक्स इट लिखा इज हुआ नॉट है देयर। कि सीनियर अंडर या ऑफिसर का रैंक है एंड उसका या रैंक है, एंड जो उनका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो ब्लैक कलर का या है सर। एग्जैक्टली। सो वी नीड टू फॉर्मलाइज इट। आई रियली विश टू टेक अप दिस केस कि भाई ये कब से ऐसा शुरू हो गया कि कोई भी अपनी मर्जी से वो बोलता है कि मैं आईडीसी हो गया तो मैं जरी वाला पहनना शुरू कर दूं। किसी दिन शायद वहां पे कोई बता दे कि अबे जरी क्यों यार, तुम गोल्ड का लगाओ। हाँ बढ़िया, सोने जो है इतने रुपए किलो चल रहा है, तुम 1 तोला सोने के लगवाओ। तो सारे बोलेंगे सर अब से राइट सर। हमने आईडीसी कर लिया तो अब हम सोने का लगाएंगे। ये ऐसे थोड़ी यार चलता है। एवरीथिंग हैज अ रीजन एंड अ लॉजिक फॉर समथिंग, बट देयर हैज टू बी एन अथॉरिटी टू इट। दिस इज नॉट फॉर फन, दिस इज टू गिव अ सैंक्टिटी टू अ समथिंग which is to be respected. If you are wearing it कि सर इसको देख के मेरा जरी जो है ज्यादा चमक रहा है इसलिए बॉम्बे से मुझे कॉल मिल जाएगा, मैं कहीं अक्षय कुमार के पिक्चर में एक्स्ट्रा तो कर ही लूंगा। अब वही एम है, वो तो अभी कर लो, उसके लिए एनसीसी क्यों ज्वाइन कर लो। बट द मोर अबाउट इज कि ये अरुण, यू हैव बीन अंडर ऑफिसर, यू नो हाउ मच लीडरशिप क्वालिटीज यू हैव shown. What have you done for the college? What have you achieved for the NCC unit in your college? What have you achieved for your NCC battalion as an under officer? Okay, दैट इज द मेन पॉइंट सर। that is main question about it. It is not about black or ye wo and all that. So I would love to see a cadet who is beyond all this and gives me a 2-page letter कि सर आई एम अंडर ऑफिसर, इट डजंट मैटर मैं ब्लैक पहनूं या गोल्डन पहनूं, लेकिन मैं ये करके दिखा रहा हूं आपको। एंड दैट इज वेयर सर लाइक इट्स वन ऑफ द सीनियर अंडर ऑफिसर इज अंडर 1 month probation with his ANO. I have told him to behave, otherwise I will take off all your badges. Why? Because he came to my office, he says मुझे पता ही नहीं था कि ये हम नहीं पहन सकते। नाउ जो भी जितने सुन रहे हैं, आप इस सेंटेंस को ध्यान से एनालाइज करें कि मुझे पता नहीं था कि हम ये नहीं पहन सकते। तो मैंने उनको कहा कि उम्र कितनी हो रही है? सर 22 साल। ओके, पास आउट होने वाले भाई साहब। तो मैंने कहा आपको कब पता चला जिंदगी में कि ट्राउजर पहनने से पहले अंडरवेयर पहनना पड़ता है? अब चुप। नाउ
कैन यू ब्लेम द वर्ल्ड कि किसी ने मुझे बताया नहीं? तो मैंने कहा तुम्हारी मदर ने या फादर ने कभी तो बताया होगा कि अंडरवेयर पहनना सीख लो बेटा। अब लंगोट पहन के दिल चले गए। तो मैंने कहा कि किसी चीज को पहनने से पहले तुम खुद ही इंक्विजिटिव होते हो कि ये मैं पहन सकता हूं कि नहीं। सो आई वांटेड टू टेल दैट गाय कि तुमने मेल अंडरवेयर क्यों पहना भाई, फीमेल अंडरवेयर पहन लेते। सो देयर इज अ टेंडेंसी कि सर मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे ये कौन सा लॉजिक हो गया जिंदगी में कि सब लोग आके आपके घर में आपके बिस्तर पे आके बताएंगे कि भाई कल ना बिस्तर के लेफ्ट से नहीं राइट से उठना। जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सो इफ यू आर अ यंग एडल्ट एंड यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू फाइंड आउट एंड कन्विंस योरसेल्फ कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है कि। Since that time, that guy is now hiding from me, and his ANO is hiding from me, because if I lay hands, and I'm sure by now he may be listening कि वो तो सोच रहा होगा इंस्टाग्राम से अपना आईडी निकाल लो कि दोबारा कभी ना सेल्फी नहीं खींचेगा। दैट इज व्हाट इट लाइफ इज कि हर चीज अरुण, मैं और तुम, अरुण यू आर ऑल्सो इन दैट स्टेज वी आर यू आर ग्रोइंग। कल मैं देखूंगा कि तुम शायद यू आर गोइंग इनटू अ प्रोफेशन वेयर यू गेटिंग अ सैलरी पर्सन और व्हाटएवर यू हैव टू लिटरली फाइंड आउट कि सर मैंने ना ये कंपनी ज्वाइन की है। अरे तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन तुम्हारा बॉस आके तुम्हारे मुंह पे थोड़ी सुनाएगा, बोलेगा पे पता कर लो। ड्यूटी सर, इट्स योर ड्यूटी। सो यू कैन नॉट टेल कि सर मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि ये जो मार्क्समैनशिप वाला बैच मैं नहीं लगा सकता। तो मैंने उसको ये बोला कि यार तुम पद्मश्री का क्यों नहीं लगाया? ये भी तो नहीं बताया किसी ने। हाँ वो भी तो किसी ने नहीं बताया। अरे उसका लगा लेते। कोई पूछता, बोला सर मुझे पद्मश्री मिला है। समथिंग लाइक न्यू मार्केट से खरीदा। हाँ न्यू मार्केट से खरीदा। और बताओ। आई थिंक सर इतना सफिशिएंट है कैडेट्स के लिए। Good fun. I think we have spent a long time today chatting. And yes sir. I'm sure you have not added some people ना, otherwise तू अगर खोल देगा तो सारे अभी जंप मार के आ जाएंगे तेरे से, मतलब यहाँ पे गप्पे मारने के लिए। Yes sir, many cadets are requesting to add in the live session. I know, and some of them are your old friends for that matter. Yes sir. You know it better. But overall sir, very great session with you. Thank you so much. काफी informative nice evening. Yeah. The issue is कि the last thing in life, you cannot assume everything. Do not assume in life कि मैं ये कर सकता हूँ. The moment you assume something कि यार इसमें कोई बुराई नहीं है, तो you are absolutely, breaking yourself. You never know when you are going to damage yourself. Okay. So this damage, you must stop yourself and find out and question yourself that should I? Now, very pertinent question somebody has just now written. Sir, I received the Prime Minister's baton in 2020. I am an SD now. Is it appropriate to still carry it? Now, look at his dilemma. Okay. Yes, sir. He is an SD now. Now, I do not know whether he has become an appointment in his college. Something like Arun, you were under officer. Yes, so जब तुम बने होगे अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर, तो तुमको वो केन दिया होगा तुम्हारे सीओ ने या एएन, ठीक है, कि ये जब तक सर एक्चुअली ही इज अ ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट नेवल विंग when he was in junior division that time. Yeah. So the prime minister baton is given to him. Correct. तो वही पूछ रहा है कि अब एसडी में मैं यूज कर सकता हूँ क्या? Yes sir. ओके. आपको प्राइम बेस्ट कैडेट थे, बेस्ट कैडेट का आपको बिल्ला मिला हुआ है जो आपके छाती में लगा होगा, उससे आगे आप कुछ नहीं कैरी कर सकते। आप बेटन जो है और केन वही कैरी कर सकता है जो अपॉइंटमेंट है। Okay. So if he is a SD appointment, he will carry. But if he is not a SD appointment and he wants to carry that baton because he was a best cadet in JD, that will not be logical. Because that will undermine the SD, SU and under officer. Yes, sir. Okay. That is what it is.
चलो एनीवे इट वाज रियली नाइस चैटिंग फॉर सो लॉन्ग. मुझे कई दिन से मेरे एडमिन बोल रहे थे कि सर बहुत दिनों से लाइव सेशन नहीं हुआ, लाइव सेशन नहीं हुआ. एंड आई वाज जस्ट taking time off with everything. But then now that I have spoken so much with you, the other people will Yes, sir. start, pestering me, ki, sir. Uh, so anyway, I have to do a video maybe with the RDC people tomorrow and talk to them Yes, because sir. RDC they have started practicing for Rajpath and the Guard of Yes, sir. Honor and even PM's rally. The drill has started. BC का आज खत्म हो गया है. So I want to just speak to my girls who I'm told that they have done well in the drill. Let's hope. So you have to keep them in good humor also. So I keep joking. So for me to joke with them, the SWs are always waiting कि sir कब आप आएंगे online, and some may be hearing me. So the SDs also कि तो last minute ज्ञान. So much what has the selection has taken place, and now no more. Everything is over. Now they are all practicing. All competitions are over, and everybody is practicing. जो भी select जहाँ हो. अब वो select होने के बाद भी अरुण होता है ना, सर मैं परेड कमांडर में 2IC नहीं बन पाया. कि सर वो ड्रिल उस्ताद and all those things keep happening. कि सर आंध्र प्रदेश को select कर लिया. But there is no end to it. Every night, die once. Every night, if you keep dying कि यार ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो मरते ही रहो. Achievement नहीं कर पाओ. Just live कि आज ये मिला. Live. Today I live because I've got this. Today I live because I've got this. Don't say today I am dead because I didn't get this. I am depressed कि मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है. I am depressed कि आज मेरे एक्स ने मेरी तरफ घूम के देखा भी नहीं, निकल लिया. You are dying every day. Stop dying every day. Start living every day. कि what I've got today. Okay. चल. Or anything else? Or shall we sign off? Or anything more? Sir, I have time still. Sir, last 1 minute. Sir, आज से हम लोग एक क्विज स्टार्ट करने वाले हैं सर, रिलेटेड टू एनसीसी ऑन द एनसीसी जर्नी पेज. एंड डेली सर जो भी एनसीसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सर, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, तो ऑन डेली 9 PM. Okay. Yes, sir. That's good. That's very nice. Okay. And one of my admins who is right now sending some emoticons, she also started it. And it was her idea. Okay. And I never say no to my admins whenever they come to me with an idea. I said, Karo. Okay. Just let me see the execution and how you formulate a process. That process leads to your personality development. अगर तुमको फ्लो चार्ट बनाना आ जाए, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना आ जाए. सो दोज बॉयज एंड गर्ल्स हु आर माय सोशल मीडिया एडमिन्स एंड हु आर कनेक्टेड विद मी, whenever they come with an idea to me, I always say कि okay करो, let's do it. But you lay down the ground rules and you tell me how to do it, because I don't want to tell, because it is your idea. और आजकल के जमाने में अरुण, मैं तुम लोगों को भी बताया ना, सारी तुमको तनख्वाह और पैसे ही आइडिया के ही मिलेंगे. राइट सर. सो अगर तुम्हारा आइडिया बिक सकता है तो यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन योर पे स्लिप. अदरवाइज नहीं तो आइडिया नहीं है तो तुम फिर कोई क्लर्क ही करोगे. एवरीथिंग इज अबाउट आइडिया, अबाउट योर ब्रेन, वर्किंग. सो आई टेल माई एडमिन्स की भाई आइडिया तुम्हारा करो, आई एम देयर विद यू. Okay, I will give you resources. Okay. So this is very good. You are starting that thing, and you can start have more, these interactions on either Insta or YouTube channel also. Live also you can do YouTube live,
with various other ex NCC officers who are actually middle age and professionals. कोई कुछ कर रहा है, कोई एनजीओ चला रहा होगा, कोई आईटी में होगा, कोई कहीं होगा. इसका डेटाबेस अभी मुश्किल है तुम्हारे पास होना, लेकिन धीमे धीमे होगा. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे ग्रुप में. Yes sir, I have some people in my contact. Yeah, so bring them along. I will bring shortly. मैं पिछले साल करना चाहता था कोविड टाइम पे. I will bring a very good NCC girl who is now a heroine in South India movies. Yeah, I know sir. हाँ, she's doing very well. She was all India best cadet sir that time. हाँ, so I have told her. In fact, I have not been able to establish contact later. She has said, "Sir, anytime I will do a Insta live with you." She's doing well and slowly rising in the movies down south. There's a glamour. Yes, sir. So if I bring her, so there'll be 1,000 people watching Your and Mine channel. Definitely, sir. Yeah. So you should think about getting more like that. And yes, sir. Yes, sir. Why not? And anybody from Bhopal I come across, I will give you the contacts. You can get in touch with them and sure, sir. Ask them, sir, would you come? I other day met. He's quite a good builder. He's into real estate. Okay. And he has gone for trekking camps. And he was telling me, sir, हम तो कैसे ट्रेन में बैठ के उदयपुर गए थे, माउंट आबू, ये वो. तो वो पूरी कहानी उसने मुझे सुनाई. He's quite junior. He came with his wife. So such people keep on meeting, and he's now developing, selling apartments in Bhopal. Imagine. Sir, Gwalior commissioner was also NCC cadet, and he was in my contact. तो एक बार हम उनसे मिले थे, तो he was sharing his experience, like हम जब ट्रैकिंग में गए थे तो वहाँ कैंप लगाना पड़ा था, गड्ढा खोदना पड़ा, ये करना पड़ा. Exactly. It's nice to bring them and interact with them. ऐसे लोगों को बीच बीच में ले आओ, जब भी मौका मिले एक लाइव कर लो, आधे घंटे का, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता. सो बोलो सर ये 4 क्वेश्चन पूछना, आ जाइए आधा घंटा, ठीक है, एंड आप ही नरेट कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस. इट वुड बी क्वाइट गुड फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू देम. ठीक है, उसके बाद सेव करके मेरे अकॉर्डिंग एक फंडा है जो अगर कैडेट्स फॉलो करते हैं तो काफी सक्सीड हो सकता है इन एनसीसी, कि अगर हम एनसीसी में इंटरेस्ट लेते हैं तो एनसीसी हमें इंटरेस्ट लेगा. बिल्कुल, very correct, no doubt about it. So it really sometimes pains me because the rural areas, the people want it, but there is no vacancy. And I would love to go to the rural areas and give them that kind of exposure, जो कि in comparison तुम्हें मिल रहा है ग्वालियर में बैठ के या और बाकियों को मिल रहा है भोपाल में बैठ के, उनको नहीं मिलता है. ओके, यस सर. इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं मिलती कि वो इंस्टाग्राम देख ले. सो इट इज easier said than done. So look at that strata of society and the percentage of population who are still not benefiting from us. I would rather also go and live with them sometime, in that village, okay, to see those aspirations in that boy or girl who wants to do and achieve something like you and me. ठीक है, चलो, shall we sign off now? Yes sir, thank you so much sir again. Okay, great session with you. Bye Arun. Great to meet you, talk to you. Okay, and in fact today morning Yogesh was calling up for something. Okay. And so I was talking to him. So ये चल रहा है. Okay sir. Okay, see you then. Good evening to all of you. Okay. And we meet again maybe sometime. I'll come because my admins will get me on my channel very soon. I can see. Great sir. Jai Hind See sir. you. Bye. Jai Hind. Take care.